Guys, welcome to online sessions. See, in today's session, we are going to see the responsibility of business towards government. See, we have already seen responsibility towards owner, investor, responsibility towards consumer, towards employee, and in today's session we are going to see the responsibility of business towards government. अभी एज अ बिजनेस आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ? द गवर्नमेंट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव्स of systematic economic development of the country and safeguarding the interest of the common man. Government provide incentives and subsidy to business. Following are the responsibilities of organization towards government. See, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस विद द ऑब्जेक्टिव. गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को कंट्रोल करता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टमैटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन. गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी टू बिजनेस. गवर्नमेंट जो है वो बिजनेस को बहुत सारी सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है. फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट. अभी एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपकी गवर्नमेंट की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? First one is timely payment of taxes. The government imposes various types of taxes like sales tax, income tax, wealth tax, etc. Business unit should pay these taxes from time to time. It would be difficult for the government to undertake development project without availability of funds. See, जो government है, गवर्नमेंट इम्पोजेज वेरियस टैक्सेस. गवर्नमेंट अलग अलग टैक्स क्या करती है, इम्पोज करती है. फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, एक्सेट्रा. बिजनेस यूनिट शुड पे दिस टैक्सेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. एज अ बिजनेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है, यू हैव टू पे these taxes from time to time. It would be difficult for the government to undertake development project without availability of funds. See, ये जो हम taxes जो भरते हैं गवर्नमेंट उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करती है. एंड अगर आप टैक्सेस नहीं पे करोगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट, गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा टू अंडरटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. Next is observing rules and regulations. The rules framed by the government for business should be fully complied with. The business should follow the laws regarding obtaining license for a specific business, the operation of business, price determination and production, etc. They should conduct business in lawful manner. See, जो rules government ने frame किया है, it is responsibility of the business to compile with, वो rules को follow करना, fulfill करना, ये उनकी responsibility है. The business should follow the law regarding obtaining license for a specific business, the operation of business, price determination and production. से जो बिजनेस है उनको लॉ फॉलो करना चाहिए जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं. लाइसेंस ऑपरेट करने के लिए जो लॉ बनाया है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस के लिए जो लॉ है, प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए जो लॉ है, प्रोडक्शन के लिए, तो दे शुड कंडक्ट बिजनेस इन लॉफुल मैनर. एज अ बिजनेस organization, it is your responsibility to conduct the activity, to conduct the business in lawful manner. Next is earning foreign exchange. The government also expect from business organization that it will earn foreign exchange by exporting goods. The government requires this foreign exchange for importing various goods, valuable and important product. See, जो government है, government also expect from business organization. Government ये expect करता है business organization से that it will earn foreign exchange by exporting goods. See, government expect करता है कि जो business organization है वो foreign exchange earn करेगा for country by exporting goods. The government required this foreign exchange for importing various goods, valuable and important product. अभी गवर्नमेंट को ये फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सो दैट दे कैन इम्पोर्ट. कुछ गुड्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैल्यूएबल होता है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत रहती है. तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करे बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक development. The government set the target for balanced and rapid economic development of the country. The business organization should provide necessary cooperation to the government. See, जो government है, government set the target. Government हमेशा target set करता है for balanced and rapid economic development of the country. The business organization should provide necessary cooperation to the government. जो business organization है वो जो ज़रूरी cooperation है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए. गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट किए हैं
फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो टारगेट को अचीव करने में जो भी हेल्प चाहिए, कॉपरेशन चाहिए, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। The government expect cooperation and help from the business sector in implementing socio-economic program and policy। तो जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कॉपरेशन एंड हेल्प फ्रॉम बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर से वो कॉपरेशन एक्सपेक्ट करता है, हेल्प एक्सपेक्ट करता है इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। इम्प्लीमेंटिंग मतलब गवर्नमेंट बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉपरेशन एक्सपेक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। एंड दे ऑल्सो एक्सपेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑल्सो एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। नेक्स्ट इज सजेशन टू गवर्नमेंट। The business organization can provide suggestion to government before framing important policies such as industrial policy, import-export policy, licensing policy. Such suggestions are helpful for framing organization-friendly policy. See, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन प्रोवाइड वैल्यूबल सजेशन, वो अपने वैल्यूबल सजेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं फॉर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, import export policy, licensing policy. Such suggestion are helpful for framing organization friendly policy। ये सारे suggestions बहुत helpful होते हैं for framing organization friendly policy। Next is no favor। The commercial organization should not take any favor from government official by bribing or influencing them। See, this one is very important। As a commercial organization, as a business unit, you should not try to gain, you should not try to take any favor from government officer by bribing them or influencing them। आपको बिल्कुल भी उनको इन्फ्लुएंस नहीं करना है, उनको ब्राइब नहीं करना है ताकि आप उनसे कुछ फेवर ले सके। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट द फंड टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। इसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वो फंड्स कंट्रीब्यूट करना चाहिए गवर्नमेंट को ड्यूरिंग दी एमरजेंसीज। अभी कंट्री में नेचुरल क्लाइमेटिस मतलब जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल जो अभी जो ऑनगोइंग पेंडेमिक है, तो ये सिचुएशन को कोप अप करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। ऑनगोइंग पेंडेमिक मतलब जो अभी टाइम है, जो मतलब जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, तो ये गवर्नमेंट को ये चीज़ों से कोप अप करने के लिए ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड कंट्रीब्यूट द फंड टू गवर्नमेंट। ये सारी इमरजेंसीज में ये सब चीज़ों में उनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट इस सिचुएशन से प्रॉपरली डील कर सके। तो नेक्स्ट लास्ट वन इज कंट्रीब्यूटिंग टू गवर्नमेंट ट्रेजर। द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंट्रीब्यूट द फंड टू गवर्नमेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड नेचुरल क्लाइमेटिस लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। अभी गवर्नमेंट सी as we all know कि गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प अस, गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक ऑल द इनिशिएटिव्स, बट ऐसा है कि गवर्नमेंट अकेले गवर्नमेंट के करने से वो चीज़ नहीं पॉसिबल है। तो एज अ बिजनेस यूनिट, एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गवर्नमेंट को आप टाइम एंड अगेन आप क्या करो, सपोर्ट करो। जब भी गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए आप उनको टाइम एंड अगेन सपोर्ट करो ताकि वो ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से वो प्रॉपरली डील कर सके। सो दिस आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स गवर्नमेंट। अभी सबसे फर्स्ट वाला था टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। से एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस यूनिट, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी टैक्सेस है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, वो सब सारे टैक्सेस आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, पे करना चाहिए। अगर आप टैक्सेस पे नहीं करोगे तो गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रेगुलेशन एज अ बिजनेस यूनिट। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू शुड फुली कंप्लाइड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम किया है आपको उसको कम्प्लीटली फॉलो करना है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो इट शुड बी लॉफुल
इन नेचर एंड इट शुड बी इन लॉफुल मैनर। वो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए एंड you have to conduct it in lawful manner as well. Next है earning foreign exchange. Government also expect from business organization that it will earn. Government business organization से expect करती है कि business organization जो है वो foreign exchange earn करे by exporting, ताकि वो government को जो रिक्वायर होता है, गवर्नमेंट को ये फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज बहुत सारे बहुत ज़रूरी एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं जो हमें इंपोर्ट करवाना रहता है। तो उसके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज जो ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कि बिजनेस यूनिट जो भी बिजनेस हाउस है, कमर्शियल बिजनेस है, वो लोग वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करे बाय एक्सपोर्टिंग थिंग्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेट सेट किए होते हैं फॉर बैलेंस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि जो डेवलप इकोनॉमिक की है जो बैलेंस डेवलपमेंट हो, उसके लिए बहुत सारे टारगेट सेट किया होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड नेसेसरी कॉर्पोरेशन टू गवर्नमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट को जो भी सपोर्ट चाहिए वो उसे प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कॉपरेशन एंड हेल्प। गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेशन और हेल्प एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम बिजनेस सेक्टर इन इम्प्लीमेंटिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करता है कि जो बिजनेस हाउसेज है वो उनको हेल्प करे। नेक्स्ट है सजेशन टू गवर्नमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज़ फ्रेम करते वक्त वो लोग उनको सजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सच एस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को वो लोग सजेशन दे सकते हैं, उनके सजेशंस हेल्पफुल होते हैं फॉर फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रेंडली पॉलिसी। नो फेवर। जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है शुड नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल। गवर्नमेंट ऑफिशियल से किसी भी तरह का फेवर नहीं लेना चाहिए बाय ब्राइबिंग और इन्फ्लुएंसिंग देम। उनको अंडर द टेबल देके आप कुछ ब्राइब करके आप उनसे फेवर ले रहे हो, तो ये बहुत गलत है। यू शुड नॉट डू दैट। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी बिजनेस की तरफ, आपकी बिजनेस की गवर्नमेंट की तरफ, दैट यू शुड नॉट ट्राई टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफिसर्स by bribing them or by trying to influence them. Next is contributing to government treasure. So जो commercial organization है, they must contribute the fund to government during the emergency and natural calamities like flood, earthquake, etc. So with this I would like to end this session. Thank you so much.